ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਖਹਿਰਾ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕੈਲਕੂਲਸ ਦਾ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਫਰਦਰ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਸ ਨੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਫਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਬੱਚੇ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਬੱਚੇ ਕਿ ਇੰਟਰਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡੋਮੇਨ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ, ਬਟ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ, ਦੈਨ ਬੱਚੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੈਫਟ ਲਿਮਿਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਈਟ ਲਿਮਿਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ, ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਲਿਮਿਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਤਿੰਨੋਂ ਇਜ਼ ਆ ਲੈਫਟ ਲਿਮਿਟ, ਰਾਈਟ ਲਿਮਿਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਜੇ ਸੇਮ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੈਨ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੋ ਡੈਟ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਬੱਚੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਐਟ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਦੋਨੋਂ ਲਿਮਿਟ ਬੱਚੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ 2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਬਟ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿਵਨ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਆ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਗਿਵਨ ਹੋਗੀ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ ਸਮ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆਲਰੇਡੀ ਗਿਵਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ 3, ਇਹ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਲੈਫਟ ਲਿਮਿਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ ਲਿਮਿਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਆ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਆ, ਜੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਮੀਨ ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਲੈਸ ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ 2x² - 3x - 2 upon x - 2। ठीक है, देखो बच्चे लेफ्ट हैंड लिमिट बच्चे फाइंड करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव fx लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव, फंक्शन बच्चे आएगा हमारे को 2x² - 3x - 2 upon x - 2। ठीक है, तो बच्चे लिमिट जो फाइंड करते सी ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਨਸ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰੈਸ਼ਨੇਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਆਇਡੈਂਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਸਿੰਪਲ ਬਣ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਇਡੈਂਟੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ a² - b² ਦੀ, ਕੱਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ। इसे देखो बच्चे कोई इधर मल्टीप्लाई तो नहीं हो रही, बट ऊपर बच्चे साडे कोल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਈ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਮਿਡਲ ਟਰਮ ਮੈਥਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼, ਤੇ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਸੇਮ ਆ ਕੇ ਕੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਮਿਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਰ ਕੋਈ ਆਇਡੈਂਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚਸ ਟੂ 2 ਨੈਗੇਟਿਵ 2x² - 3x - 2। ਬੱਚੇ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਪਲਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ x² ਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ -2 ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 2 ਨਾਲ, ਦੇਖੋ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ -4। ठीक है, देखो -2 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 2 ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ -4। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -3
-3 ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪਲਿਟ ਕਰਨਾ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ कि प्लस या माइनस करिए तो साढ़े को आंसर आए -3 ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏ -4। ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 2x² ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ -4x + x x -2 ਦੇਖੋ -4 ਨੂੰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ -3 ਤੇ -4 ਨੂੰ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ -4। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ -3x ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ -4x + x ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਸਟ 2 ਟਰਮ ਤੇ ਲਾਸਟ 2 ਟਰਮ ਬੱਚੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਪੈਣ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲਿਮਟ x ਅਪਰੋਚਸ ਟੂ 2 ਨੈਗੇਟਿਵ। ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਟਰਮ ਚੋਂ ਕੀ ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ 2x that is x - 2 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं तो बाहर की 1 कॉमन लिख लेना होता x - 2। ठीक है, नीचे बच्चे आ गया देखो x - 2। ठीक, लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव। देखो बच्चे इतने हुन दोनों जो x - 2 बच्चे आप कॉमन कढ़ लांगे x - 2 बच्चे कॉमन निकलिया अंदर बच्चा अटको बच गया 2x + 1 अपॉन से बच्चे आ गया देखो x - 2 ਤੇ ਇੱਥੇ x - 2 ਬੱਚੇ ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਗਏ ਕੈਂਸਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਨਲੀ ਟਰਮ ਬਚ ਕਿਹੜੀ ਬਚ ਗਈ ਇੱਥੇ ਲਿਮਟ x ਅਪਰੋਚਸ ਟੂ 2 ਨੈਗੇਟਿਵ 2x + 1। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਸੇਮ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਇੱਥੇ 2 ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਲੈਸ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਲੈਸ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ x ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ x = 2 - h ਤੇ h ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚੇਗਾ > 0 ਤੇ h ਬੱਚੇ ਕਿਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ 0 ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ h ਕਿਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 0 ਨੂੰ। h ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਾਲ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਦੈਨ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਲਿਮਿਟ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਏਗੀ h ਦੇ ਵਿੱਚ h ਅਪਰੋਚਸ 0। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ x ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤਾ 2 - h + 1। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ h ਨੂੰ 0 ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਬੱਚੇ h ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਦੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਾਂਗਾ 0 that is 2 - 0 + 1 2 - 0 ਬੱਚੇ 0 ਆ ਗਿਆ सॉरी 2 - 2 ਬੱਚੇ 2 - 0 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ 2। ਠੀਕ ਹੈ, 2 - 0 2 + 1 ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ 4 + 1 = 5 ਬੱਚਾ ਦਾ ਆंसर ਆ ਗਿਆ 5। ਠੀਕ है, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਗਈ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਸਾਡੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ ਗਈ 5। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਸੀ ਇੱਥੇ 3 ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟ ਲਿਮਿਟ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 5। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਰਾਈਟ ਲਿਮਿਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸਾਡੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਫਟ ਲਿਮਿਟ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹੀ ਦੋ ਬੱਚੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਲਿਮਿਟ ਚਾਹੇ ਲੈਫਟ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏ ਚਾਹੇ ਨਾ ਆਏ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਲਿਮਿਟ ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡਾ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈਗਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਲਿਮਿਟ ਫਾਈਂਡ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 5 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਲੈਫਟ ਲਿਮਿਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਲਿਮਿਟ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਇਕੁਅਲ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਲਿਮਿਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਲਿਮਿਟ ਦੋਨੋਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਹੁਣ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਕੀ ਆਈ ਆ 3। ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈਫਟ ਲਿਮਿਟ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਈਟ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰੇ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈਫਟ ਲਿਮਿਟ ਰਾਈਟ ਲਿਮਿਟ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਿੰਨੋਂ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਲੈਫਟ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ f of 2 not equal to limit x approaches to negative fx कि फंक्शन दी वैल्यू लेफ्ट लिमिट दे इक्वल ही नहीं है implies f is discontinuous। ठीक है, इत्थे हम कहांगे f साडे कोल की हैगा बच्चे डिसकंटीन्यूअस हैगा। ठीक है, हुण बच्चे नेक्स्ट एग्जांपल देखने की ये बच्चे नोट करना एग्जांपल नु तुसीं
तो बच्चे वीडियो पॉज करके पूरी एग्जाम्पल नोट कर सकते हो। नैक्सट बच्चे एग्जाम्पल देखिए, डिस्कस दी कंटिन्यूटी एफ एक्स फंक्शन दिता बच्चे उन्होंने जे एक्स की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है x -1 अपॉन स्केयर रूट x स्केयर -1 जे बच्चे साडे कोल x की वैल्यू 1 के इक्वल है ਆਪਾਂ ਤੇ फंक्शन ਦੀ आउटपुट की हैगी साडे कोल बच्चे 0 ठीक है। फंक्शन की वैल्यू 1 ਤੇ 0 आ नॉट इक्वल 1 ਦੇ बच्चे ये फंक्शन लैके चलांगे ਆਪਾਂ चेक करनी है कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1 ठीक है। चलो बच्चे देखो फर्स्ट सानू उत्थे गिवन हैगा फंक्शन की वैल्यू गिवन है फंक्शन की वैल्यू बच्चे गिवन हैगी सानू इत्थे गिवन f of 1 is equal to 0 फंक्शन की वैल्यू बच्चे 1 के ऊपर इक्वल टू 0 गिवन है इक्वेशन 1 मान लेते हैं ठीक है। नेक्स्ट बच्चे फाइंड करेंगे आप इतने लेफ्ट राइट दोनों लिमिट्स फाइंड करेंगे आप इतने ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट बच्चे सॉल्व करिए लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव एफ एक्स इतने बच्चे फंक्शन साडे कोल हैगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव मीनस लेफ्ट हैंड लिमिट साडे कोल ते फंक्शन बच्चे हैगा साडे कोल x -1 अपॉन स्क्वायर रूट x स्क्वायर -1 ठीक है। तो फिर बच्चे वही सब तो पहले आप देखना कि फंक्शन जोड़ा है कि इन्हों आप फैक्टराइज कर सकते हैं जे बच्चे फैक्टराइजेशन इतने पॉसीबल है तो आप बच्चे करेंगे देखो नीचे x स्क्वायर -1 आ रहा है मतलब इतने आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जेड़ा भी बच्चे तुहानू लगे कि हाँ इतने डंटीप्लाई हो सकती कर देनी है ठीक है। अगे सिंपलीफाई देखो अपने आप साडा सम हो जाना ठीक हुण इत्थे बच्चे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ऊपर बच्चे आ गया x -1 नीचे इत्थे आ जाएगा x -1 ते x +1 ठीक है। हुण दो साडे कोल टर्म बच्चे आ रही है x -1 ते x +1 आ रही है दोनों बच्चे मल्टीप्लाई हुई स्क्वायर रूट दे विच दैन फिर बच्चे आप इन्हों वक्खो वक्रा स्क्वायर रूट पा के भी लिख सकते हैं कोई भी दो नंबर स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होन तो उन्होंने आप मल्टीप्लीकेशन पा के वक्खो वक्रा स्क्वायर रूट में पा के भी लिख सकते हैं ठीक है। जो नंबर पॉजिटिव साडे कोल होने ठीक है। इत्थे साडे कोल देखो एक नंबर भी साडे कोल नॉन नेगेटिव हैगा देखो ना x +1 नॉन नेगेटिव है दोनों आप मल्टीप्लाई दे विच स्क्वायर रूट पा के लिख सकते हैं देखो साडे कोल इक्वल टू क्या है इत्थे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव x -1 अपॉन एक बचे आ गया रूट x -1 एक बचे आ गया रूट x +1 हुण इत्थे रूट x -1 आ रहा कोई कटिंग कुछ नहीं हो रहा कि बच्चे मैं x -1 जिहड़ा मेरे को लिया इनू मैं रूट x -1 मल्टीप्लाई रूट x -1 लिख सकदा क्योंकि मैं इनू करांगा रूट x -1 नीचे मेरे को रूट x -1 आ रहा है ना स्क्वायर रूट x -1 तो इतने मेरे को इन्होंने स्क्वायर रूट x -1 कन्वर्ट करना बच्चे ऊपर नीचे की हो जाएगी इतने कटिंग हो जाएगी ठीक है। कोई नंबर 2 है 2 नू आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 हाँ लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके फिर सारे को 2 ही आ जाएगा सेम बच्चे इतने आप इतने यही प्रॉपर्टी अप्लाई करांगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव लेफ्ट हैंड लिमिट इतने बच्चे लिख लिया आप स्क्वायर रूट x -1 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट x -1 अपॉन स्क्वायर रूट x -1 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट x +1 देखो बच्चे स्क्वायर रूट x -1 कट हो गया साडे कोल इत्थे फंक्शन की आ गया साडे कोल स्क्वायर रूट x -1 अपॉन स्क्वायर रूट x +1 ठीक है जी। हुण बच्चे अगे आपां फिर लेफ्ट लिमिट पुट करनी फिर आपां x नूं बच्चे सबस्टिट्यूट करांगे इत्थे 1 तो थोड़ी जी बच्चे लैस वैल्यू सानूं चाहिदी है दैन की x नूं पुट करांगे 1 - h लैके चलांगे आपां बच्चे पुट करांगे कि आप पुट x इज इक्वल टू 1 - h h ग्रेटर दैन 0 ते h बच्चे किनू अप्रोच करती है साडे कोल इत्थे 0 नू साडे फंक्शन बच्चे साडे कोल चेंज होके की आ जाएगा देखो लिमिट x अप्रोचेस टू सॉरी इतने बच्चे साडे कोल लिमिट h आ जाएगी लिमिट h अप्रोचेस टू 0 x करते बच्चे आप की पुट करांगे 1 -h -1 अपॉन इतने पुट करांगे बच्चे आप 1 -h +1 नेक्स्ट बच्चे h नूं बच्चे आप सबस्टिट्यूट कर देंगे 0 क्योंकि मैं h नूं 0 पुट कर सकता मैंने इत्थे कोई प्रॉब्लम नहीं हुण डायरेक्ट सबस्टिट्यूशन कर दे ठीक है। h नूं बच्चे पुट करांगे 0 इत्थे ते मेरे को इत्थे बच्चे आ जाएगा 1 -0 -1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 -0 +1 देखो बच्चे की आ गया 1 - 0
आ -1 आ +1 आ रहा है, ये बच्चे कट हो गया जाएगा 0 स्क्वायर रूट 0 अपॉन 1 -0 +1 दोनों बच्चे 1 प्लस दे नीचे क्या आ जाएगा बच्चे हटे कोल स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा ऊपर बच्चे 0 आ रहा 0 बाय स्क्वायर रूट 2 ते आंसर बच्चे किदे कोल आ गया हटे कोल 0 ठीक है। ये साडे बच्चे आ गई लैफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू बच्चे 1 के इक्वल की हैगी हटे कोल 0 आ ते लैफ्ट हैंड लिमिट साडे को बच्चे की आई है 0 मतलब लैफ्ट हैंड लिमिट ते फंक्शन की वैल्यू मैच करती पई है। हुण बच्चे आप राइट हैंड लिमिट फाइंड करांगे जो वो भी बच्चे मैच कर गई दैन फंक्शन की होगा साडा कंटीन्यूअस ठीक है। बच्चे राइट हैंड लिमिट स्टार्ट करते हैं राइट हैंड लिमिट लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव फंक्शन साडी को बच्चे सेम होगी x -1 अपॉन स्क्वायर रूट x स्क्वायर -1 ਹੁਣ देखो बच्चे ਹੁਣੇ ही मैं लेफ्ट एलिमेंट फाइंड की है ते फंक्शन ਨੂੰ बच्चे फैक्टराइज करके सिंपलीफाई किया मेरे को ए फंक्शन आया फिर दोबारा जो मैं राइट हैंड लिमिट जी सॉल्व करांगा तो फिर दोबारा बच्चे इतने मैं फैक्टराइजेशन अप्लाई करके सेम यही बच्चे कैलकुलेशन मैं अप्लाई करांगा तो मेरे को ए फंक्शन आ जाएगा तो मैं बच्चे डायरैक्ट इतने ए फंक्शन जो है यूज कर लेना ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव बच्चे फंक्शन की यूज करांगे इतने मैं स्क्वायर रूट x -1 अपॉन स्क्वायर रूट x + 1 ठीक है। हुण फिर x को बच्चे पुट करना आप 1 तो थोड़ा जा ग्रेटर राइट हैंड लिमिट तो अप्रोच करना है तो की पुट करेंगे बच्चे पुट करेंगे x ਨੂੰ 1 + h पुट बच्चे कर लिया इतने हुण पुट x = 1 + h h बच्चे ग्रेटर दैन 0 आ तो h किनू अप्रोच करदा पिया 0 ਨੂੰ साडा बच्चे फंक्शन ਜਿਹੜਾ देखियो की आ जाएगा इत्थे हुण इंप्लाइज लिमिट h अप्रोचेस टू 0 इतने बच्चे आ गया हमारे को 1 + h -1 अपॉन बच्चे आ गया हमारे को 1 + h + 1 फिर बच्चे मैं h में पुट कर दूंगा 0 1 + 0 -1 अपॉन 1 + 0 + 1 देखो बच्चे 1 -1 फिर क्या आ जाएगा इतने 0 का रूट अपॉन 1 + 1 क्या आ जाएगा बच्चे इतने स्क्वायर रूट 2 ये आ गया बच्चे 0 के इक्वल आ गया मीन देखो बच्चे साडी फंक्शन की वैल्यू 1 ते 0 लैफ्ट हैंड लिमिट बच्चे आ गई साडे को 0 ते राइट हैंड लिमिट बच्चे साडे को की आ रही है 0 आ रही है इट मीनस साडा इत्थे फंक्शन की हैगा आ कंटीन्यूअस हैगा बिकॉज लैफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल लिमिट एग्जिस्ट एंड फंक्शन की बच्चे वैल्यू भी की आ रही है सेम आप कह सकते हैं फंक्शन इज कंटीन्यूअस ठीक है बच्चे एग्जाम्पल नोट कर लो पूरे कैलकुलेशन ठीक वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो स्टार्ट कर दी नेक्स्ट एग्जाम्पल एग्जामिंग दी कंटिन्यूटी फंक्शन दी फंक्शन बच्चे जे x पॉइंट नॉट इक्वल टू 4 ये फंक्शन लेके चलना जे बच्चे x इक्वल टू 4 है तो साडा बच्चे फंक्शन का आंसर की हैगा 0 तो चेक करनी है कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 4 सेम बच्चे फिर इतने फंक्शन की वैल्यू 4 के ऊपर लिमिट चेक करनी कंटिन्यूटी इतने तो फंक्शन की बच्चे वैल्यू 4 के इक्वल की गिवन है साडे को 0 सब तो पहले लिख लेने गिवन f of 4 फंक्शन की वैल्यू बच्चे 4 के इक्वल कितनी हैगी 0 इक्वेशन 1 ठीक है। नेक्स्ट बच्चे हम की फिर सॉल्व करना पा फंक्शन की वैल्यू साडे को गिवन है लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट सब तो पहले स्टार्ट करें बच्चे लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 4 लेफ्ट हैंड साइड अप्रोच करना पर नेगेटिव साइन पावांगे fx इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 4 नेगेटिव फंक्शन बच्चे जे x की वैल्यू 4 के इक्वल नहीं है की फंक्शन लेके चलना है मॉडुलस x - 4 अपॉन 2 टाइम x - 4 ठीक है जी। चलो हुण फिर नेक्स्ट इतने देखो बच्चे कि कोई फैक्टराइजेशन पॉसिबल है आई थिंक जो मॉडुलस फंक्शन है तो मॉडुलस फंक्शन को आप इतने कोई फैक्टराइज करना जोड़ा है वो आई थिंक पॉसिबल नहीं है फिर बच्चे डायरैक्ट आप अपनी लिमिट के उपर चलते हैं ठीक है। जो लगता किसी भी फंक्शन कोई आइडेंटिफाई हो सकती है कोई फैक्टराइजेशन पॉसिबल है कोई रैशनल हो सकती बच्चे पहला वो करने उस तो बाद नैक्सट आप लिमिट उपर चलना ठीक है बट इतने आई थिंक कुछ पॉसिबल नहीं है फिर डायरैक्टली बच्चे आप करते हैं लिमिट की वैल्यू करते सबस्टिट्यूट कि बच्चे करते हैं एक्स की वैल्यू है बच्चे 4 तो थोड़ी लैस पुट करनी है तो की बच्चे पुट करेंगे आप
पुट x इज इक्वल टू 4 तो थोड़ी जी लैस वैल्यू 4 माइनस h ग्रेटर दैन 0 तो h बच्चे किनू अप्रोच करता पिया 0 ਨੂੰ ठीक है। ये बच्चे सबस्टिट्यूट करने तो बाद साडा फंक्शन की बन जाएगा इत्थे लिमिट बच्चे आ जाएगी h दे विच h अप्रोचेस टू 0 x की जगह बच्चे पुट करना 4 माइनस h 4 माइनस h 4 माइनस h नाल बच्चे आ गए थे -4 अपॉन 2 टाइम इतने बच्चे आ गया 4 माइनस h माइनस 4 क्लियर। x जगह बच्चे पुट किया 4 माइनस h 4 माइनस h माइनस 4 नीचे भी 2 इंटू 4 माइनस h ते माइनस 4 बच्चे नाल एस टी आ गया ठीक है। हुण देखिए कटिंग हो जाती है इतनी 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव कट 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव कैंसल। हुण जो बच्चे फंक्शन बच्चा देखिए अपन इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 देखो बच्चे थे माइनस h मॉडुलस अपॉन 2 इंटू माइनस h। हुण कुछ बच्चे कहणगे कि आपां इत्थे डायरैक्ट h ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ 0 है ना। तो सोच सकते सी कि इत्थे 4 माइनस h माइनस 4 आया तो h ਨੂੰ ਆਪਾਂ 0 ਪੁੱਟ कर दें तो बाद सिंपलीफाई कर दे नहीं बच्चे h ਨੂੰ ਆਪਾਂ 0 ਚੜਾਇਆ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ठीक है। लास्ट से जाके आप h ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ 0 ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ कि आप डायरैक्ट ही जो इतने साढ़े को माइनस एच पाना इतने एच आ रहा है तो आप एच 0 पुट करते नहीं जिन्हों लगता इतने कि कोई ना कोई कैलकुलेशन पॉसीबल है कोई कटिंग कोई समथिंग कुछ आप कैलकुलेशन कर सकते फर्दर होर दैन आप करके उस तो बाद लास्ट से जाके बच्चे एच ਨੂੰ सबस्टिट्यूट करना आप 0 ठीक है। समझ आ रहा है ना क्योंकि ये नहीं कि बच्चे देखो इतने साढ़े को कटिंग होके वैल्यू आ गई है तो आप डायरैक्ट उन्हें एच ਨੂੰ 0 पुट कर देनी क्योंकि मैं लगता कि मैं अगे होर इनू फर्दर सिंपलीफाई फंक्शन ਨੂੰ कर सकता हाँ ठीक है। जो लगे कि हुण अगे सिंपलीफाई नहीं हो सकता खत्म बस इतने फंक्शन फिर बच्चे आप जो एच लिमिट है उन्होंने 0 सबस्टिट्यूट करना होंगे ठीक है। हुण देखो एच इतने को बच्चे को माइनस एच का मॉडुलस है तो मॉडुलस का बच्चे की साढ़े को रोल होंगे कि जो नेगेटिव वैल्यू है जो मॉडुलस हटाने तो बच्चे वैल्यू की हो जाती है पॉजिटिव जो माइनस एच का मॉडुलस है मॉडुलस हटावांगे ये ही बन जाएगा बच्चे एच अपॉन इतनी कह देगा बच्चे -2h ठीक है। माइनस एच से बच्चे मॉडुलस हटाया तो नेगेटिव वैल्यू बच्चे कट कन्वर्ट होगी पॉजिटिव के नीचे जो 2 मल्टीप्लाई माइनस एच के आ गया -2h देखो बच्चे इतने हूँ एच की एच नाल की होगी बच्चे कटिंग देखो हूँ एच की वैल्यू 0 पुट करने का सानू की मौका ही नहीं मिला क्योंकि अगे नैक्सट जो आप फर्दर इनू सिंपलीफाई किया तो साढ़े को एच की एच नाल की होगी कटिंग कैंसल हो गया बाकी बच्चे की बच गया जो बच के लिख लिमिट एच ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ h ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -1/2 ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਬਚੀ ਆ ਗਈ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वेशन 2 मान लो देखो बच्चे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get f of 4 not equal to लिमिट x closes to 4 fx मींस देखो फंक्शन की वैल्यू 4 के ऊपर की सी बच्चे 0 बट साडी बच्चे लेफ्ट हैंड लिमिट की आ गई है -1/2 इट मींस फंक्शन की वैल्यू ते लेफ्ट लिमिट दोनों इक्वल नहीं हैगियां राइट लिमिट फाइंड हुण करन दा कोई फायदा ही नहीं क्योंकि फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट लिमिट दी इक्वल ही नहीं आई इट मींस फंक्शन बच्चे की होएगा फिर डिसकंटीन्यूअस देन f इज डिसकंटीन्यूअस ठीक है क्योंकि कंटिन्यूटी वास्ते लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट ते फंक्शन दी तीनों बच्चे इक्वल आउणियां चाहिए ने ठीक है जी बच्चे नोट कर लो एग्जांपल नेक्स्ट बच्चे एग्जांपल देखिए डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन 1 + 4x स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट 1 - 4x अपॉन sin x नॉट इक्वल टू 0 when x equal to 0 function fx is equal to 4 बच्चे अपन चेक करनी है कंटिन्यूटी एट x is equal to 0 मतलब x is equal to 0 दी पॉइंट के ऊपर बच्चे अपन चेक करना कंटिन्यूटी सेम बच्चे फिर हर सम की तरह दी फंक्शन की वैल्यू सानू गिवन हैगी 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू बच्चे की हैगी साडे कोल 4 इक्वेशन बच्चे अपन 1 इत्थे मान लेने फिर बच्चे सेम वही स्टार्ट करेंगे अपन बच्चे हुन लेफ्ट लिमिट तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव स्क्वायर रूट 1 + 4x माइनस स्क्वायर रूट
1 माइनस 4x अपॉन बच्चे की आ गया साढ़े को इतने sin x। ठीक है। और देखो बच्चे सब तो पहला वही देखिए फिर कि आप बच्चे को सिंपलीफाई कर सकते हैं कि कोई वैल्यू जी साढ़े को फैक्टराइजेशन वगैरह हो जाए। बच्चे देखो ना ही डायरैक्ट सबस्टिट्यूशन पॉसीबल है ना ही बच्चे साढ़े को फैक्टराइजेशन पॉसीबल है। फिर बच्चे आप की कर सकते हैं स्केयर रूट वाली टर्म है तो आप इतने रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है भाई स्टार्ट करेंगे बच्चे इतने रैशनलाइजेशन तो। ठीक है रैशन बच्चे कर देंगे इन वैल्यू में साढ़े को इतने स्केयर रूट 1 प्लस 4x साइन बच्चे आप चेंज कर देना दो टर्म ने जो रैशनलाइज करना होंगे तो बच्चे साढ़े को साइन होंगे आप चेंज कर दें 1 माइनस 4x अपॉन ऊपर मल्टीप्लाई हुई स्केयर रूट 1 प्लस 4x प्लस स्केयर रूट 1 माइनस 4x। ठीक है जी मल्टीप्लाई करिए जी साढ़े को देखते हैं सिंपलीफाई करके फंक्शन की बात है। देखो इसे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव हम देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखो ये दोनों वैल्यू मैच करती पी में साइन का डिफरेंस है इतने बच्चे प्रॉपर्टी केड़ी अप्लाई कर सकते हैं आप a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए की बच्ची होंगी a स्केयर माइनस बी स्केयर दे बच्चे प्रॉपर्टी आप अप्लाई करेंगे इतने डायरैक्ट आ जाएगा स्केयर रूट 1 प्लस 4x का स्केयर माइनस स्केयर रूट 1 माइनस 4x का स्केयर तो नीचे बचे साढ़े को एज टी जी साइन एक्स नाल बचे आ गए थे स्केयर रूट 1 प्लस 4x प्लस स्केयर रूट 1 माइनस 4x। ठीक है जी हम सिंपलीफाई करिए इनू स्केयर ना बचे स्केयर रूट कट हो जाएगा स्केयर ना स्केयर रूट कैंसिल हो गया साढ़े को फंक्शन की आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेक्स्ट बचे इतने आ गया डिकोल 1 प्लस 4x माइनस 1 माइनस 4x अपॉन साढ़े को सेम बचे साइन एक्स तो स्केयर रूट 1 प्लस 4x प्लस स्केयर रूट 1 माइनस 4x। ठीक है जी बच्चे माइनस आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस हो जाएगा। देखोगे लिमिट x अप्रोचेस 0 नेगेटिव 1 प्लस 4x माइनस 1 प्लस 4x अपॉन साइन एक्स स्केयर रूट 1 प्लस 4x प्लस स्केयर रूट 1 माइनस 4x 1 ना बचे 1 कैंसल 4x प्लस 4x बचे की आगे साढ़े को 8x लिमिट x अप्रोचेस 0 नेगेटिव 8x अपॉन साइन एक्स इतने बचे आएगा साढ़े को स्केयर रूट 1 प्लस 4x प्लस स्केयर रूट 1 माइनस 4x। ठीक है जी हम सिंपलीफाई करके बच्चे साढ़े को ये फंक्शन बन गया। ठीक है जी हम बच्चे दो अगे आप सिंपलीफाई नहीं होर कर सकते। नैक्सट बच्चे फिर वही 0 के उपर बच्चे अप्रोच करते पे तो एक्स की पुट करेंगे बच्चे हम 0 माइनस एच बच्चे एक्स 0 माइनस एच ग्रेटर दैन 0 तो एच बच्चे की है देखो 0 करते पे अप्रोच दैन साढ़े कोई फंक्शन बच्चे की बन जाएगा देखो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 8 इंटू 0 माइनस एच अपॉन साइन 0 माइनस एच नेक्स्ट स्केयर रूट 1 प्लस 4 इंटू 0 माइनस एच प्लस स्केयर रूट 1 माइनस 4 इंटू 0 माइनस एच। ठीक है जी हाँ देखो बच्चे 0 माइनस एच करके माइनस एच तो माइनस एच में बच्चे 8 ना मल्टीप्लाई करेंगे साढ़े को आ जाएगा हम लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 8 0 माइनस एच 8 माइनस एच बच्चे आ गया साढ़े को माइनस 8h अपॉन साइन 0 माइनस एच बच्चे साढ़े को आ जाएगा साइन माइनस एच नेक्स्ट 1 प्लस 4 इंटू 0 माइनस एच दैट इज 4 इंटू आ जाएगा बच्चे माइनस एच
ये आ जाएगा स्क्वायर रूट दे विच बच्चे इत्थे आ जाएगा देखो 1 माइनस 4h प्लस देखो बच्चे -4 इंटू माइनस एच इतने रहेगा 1 प्लस 4h। ठीक है बच्चे, हम बच्चे स्पेस नहीं हैगी इस करके वीडियो में पॉज करके पहला पूरा ही नोट कर लो। ठीक है, मैं फस्ट 2 स्टैप जोड़े आ वो रब कर लग गए हैं। हम इस तो बाद नैक्सट है बच्चे की है देखो -8h लिखांगे लिमिट h अप्रोचेस 0 -8h अपॉन बच्चे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आप एक रिजल्ट देखते सी +1 च कि cos ते secant का बच्चे जो एंगल नेगेटिव है तो वो बच्चे नेगेटिव एंगल अंदर ही खत्म हो जाता, बट बाकी जिन्हें भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है जो उनका एंगल के नेगेटिव आ रहा है तो माइनस बच्चे की आता है बाहर आ जाता है। ठीक है, ये क्यों आता है आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन च इनू डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो ये बच्चे हम साइन -h का माइनस बच्चे आ जाएगा बाहर, आ जाएगा माइनस साइन h नेक्स्ट स्क्वायर रूट 1 माइनस 4h प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस 4h। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे तो बाद माइनस ना बच्चे माइनस हो जाएगा कैंसल। ठीक, इक्वल टू साढ़े बच्चे आ गया लिमिट h अप्रोचेस 0 8h अपॉन साइन h इंटू 1 माइनस 4h प्लस 1 प्लस 4h। ठीक है, हम देखो बच्चे नैक्सट चलो आप बच्चे देखो h की वैल्यू लिमिट सबस्टिट्यूट करने तो बाद साडे कोल फंक्शन बन गया। हुण की आप अगे इस फंक्शन को सिंपलीफाई होर कर सकते हैं। तो तुहानूं याद होए जो आप लिमिट फाइंड करते सी ते साडे कोल कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ जाता सी साइन या फिर टैन, तो आप कुछ रिजल्ट डायरैक्ट यूज करते सी वो किहड़ी सी। देखो बच्चे जे साडे कोल साइन आ रहा जो बच्चे साइन का एंगल है जो साइन का एंगल आ जे उस नाल आपां डिवाइड करते हैं तो जो बच्चे साडे कोल इत्थे एंगल आ रहा जे वो बच्चे एंगल अप्रोच करता पिया 0 नूं ते साडा डायरैक्ट ओहदा आंसर आपां की लिखदे सी 1। ये रिजल्ट नूं आपां उत्थे जिहड़ा प्रूफ ही कीता है सी कि 1 दे इक्वल साडा रिजल्ट ये आउंदा है। ठीक है, हुण देखो जदों भी बच्चे आपां लिमिट फाइंड करनी है जे साइन कॉस साइन टैन मेन ये दोनों बच्चे फंक्शन लिखते हो दैन ये बच्चे प्रॉपर्टी आप यूज करनी ही करनी है। ठीक है, हम देखो इतने बच्चे की आ रहा है मेरे को साइन h आ रहा तो h बच्चे किनू अप्रोच करता पे इतने 0 हूँ बस मैं चाहिए कि इतने जो साइन का एंगल है जे उस बच्चे मैं डिवाइड करदा एंगल जिन्हों ऑलरेडी अप्रोच करता पाया तो उस एंगल ना डिवाइड करना तो ये बच्चे मेरे को वैल्यू की बन जाएगी इतने 1 बन जाएगी। यही बच्चे मैं इतने रिजल्ट जोड़ा वो यूज करांगा जो इतने बच्चे मैं लिखा हुआ मैं बच्चे की करा देखे साइन h आ रहा h ना बच्चे मल्टीप्लाई कर दांगा h ना बच्चे डिवाइड कर दांगा तो ये प्रॉपर्टी बच्चे यूज करांगा ये जगह बच्चे लिख दांगा 1 कि में देखो नेक्स्ट स्टेप लिमिट h अप्रोचेस टू 0 8h अपॉन देखो बच्चे h ना मल्टीप्लाई किया ते h ना बच्चे किया आप इतने डिवाइड देख लो नेक्स्ट स्क्वायर रूट 1 माइनस 4h प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस 4h। देखो h ना मल्टीप्लाई h ना बच्चे की किया आप इतने डिवाइड ते साइन h बाय h ते h बच्चे लिमिट अप्रोच कर दी भी 0 नूं इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बच्चे आप इहदी जगह ते की लिख दांगे 1 लिख देवांगे। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे स्टेप आप लिखते हैं नीचे बच्चे आई थिंक नोट कर लेना तुसीं मैं नीचे रब कर देना सारा। ठीक है, देखो बच्चे साडे को नेक्स्ट की आज हुण ये बच्चे वैल्यू 1 आ गई लिमिट h अप्रोचेस 0 तो बच्चे h नाल h की हो जाएगा इतने कैंसल सिर्फ बाकी गया बच्चे 8 अपॉन ये वैल्यू तो 1 आ गई कल बच्चे बाकी क्या आते हैं 1 इंटू स्क्वायर रूट इतने बच्चे h आना 1 माइनस 4h प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस 4h। हम देखो बच्चे इस तो अगे आप कोई भी सिंपलीफिकेशन नहीं कर सकते। हम बच्चे की करेंगे h ਨੂੰ ਇੱਥੇ डायरेक्ट पुट कर देंगे 0 ਦੇ ਸਾਡੇ को आंसर की आउंदा 8 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस बच्चे ਇੱਥੇ 0 पुट करेंगे 0 इंटू 4 ਸਾਡੇ को 0 ही आ जाएगा 1 प्लस ਇੱਥੇ बच्चे आ जाएगा 0
8 अपॉन बच्चे 1 माइनस 0 साढ़े को आ गया स्केयर रूट 1 प्लस बच्चे आ गया स्केयर रूट 1 तो बच्चे 1 का स्केयर रूट 1 ही होंगे तो 1 प्लस 1 आ जाएगा बच्चे 2 ठीक है 8 1 प्लस 1 बच्चे आ गया साढ़े को इतने 2 इक्वल टू आ गया बच्चे 8/2 तो कटिंग करके आ गया साढ़े को 4 इक्वेशन 2 ये साढ़े को बच्चे आ गई है लैफ्ट हैंड लिमिट जो साढ़े बच्चे की आई है 4 ठीक है। सिमिलरली बच्चे जिवें असीं लैफ्ट हैंड लिमिट फाइंड की है देखो लैफ्ट हैंड लिमिट ते फंक्शन वाले मैच करदी पईयां ने हुण बच्चे आपां राइट हैंड लिमिट फाइंड करांगे ते जिवें बच्चे आपां लैफ्ट हैंड लिमिट फाइंड की है सेम बच्चे यही प्रोसीजर फॉलो करके क्योंकि सारी कैलकुलेशन बच्चे सेम आनी है जिवें फंक्शन बच्चे जब रैशनलाइज करना है रैशनलाइज करके फिर राइट लिमिट जो दोबारा रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं तुसीं ओही जिहड़ा फंक्शन है यूज कर सकते हो ठीक है। बच्चे रैशनलाइज करने तो बाद फिर वैल्यूज विच आपां x की जगह पे पुट करांगे इत्थे हुण 0 प्लस h ठीक है 0 प्लस h पुट करना जो बच्चे आपां कैलकुलेशन से लैफ्ट लिमिट विच कीती आ सेम बच्चे कैलकुलेशन तुसीं राइट लिमिट च करनियां ने ते राइट लिमिट फाइंड करोगे ते बच्चे राइट लिमिट जिहड़ी आ वो भी तुहाडी मैं डायरेक्ट लिख देना इत्थे जिहड़ी राइट लिमिट तुहाडी आएगी x अप्रोच 0 पॉजिटिव ते वो भी बच्चे तुहाडी की आऊगी 4 ही आऊगी क्वेश्चन 3 मार लेंगे वो बच्चे दी खुद सॉल्व करके देखनी जिवें बच्चे तुहानूं मैं लैफ्ट लिमिट सॉल्व कराई है सेम बच्चे उवें तुसीं राइट लिमिट भी सॉल्व करके देखनी ताकि थोड़ा जिहा तुहानूं मतलब ये सम नूं सॉल्व किवें करना वो आइडिया भी आ जाएगा ज़्यादा ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चे हम फंक्शन की वैल्यू 4 लैफ्ट लिमिट 4 राइट लिमिट सॉल्व करोगे वही बच्चे 4 आ जाएगी तीनों बच्चे देखो लैफ्ट राइट ते फंक्शन की वैल्यू तीनों बच्चे इक्वल आ रही ने देन फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 we get f is continuous बच्चे फंक्शन ते की होएगा साडा कंटिन्यूस होएगा ठीक है। होप करदा बच्चे एग्जांपल इंपॉर्टेंट भी है तीनों बच्चे ध्यान नाल एग्जांपल नूं समझ के नोट कर लिओ ते बच्चे इहदे नाल दे जिन्ने भी सम्स 2-4 हैगे उन्होंने सॉल्व करना ठीक है। मुझे नेक्स्ट एक एग्जांपल और कवर करते हैं बच्चे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इज फंक्शन greatest is the function x minus 1 upon x minus 1 when x not equal to 1 when x equal to 1 function is minus 1 continuous at x equal to 1 बच्चे 1 ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। बच्चे देखो ਹੁਣੇ जो ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਵਾਲੇ ਸਮਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਮੋਡੂਲਸ ਵਾਲੇ ਸਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਝ ਫੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਮਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੈਕਸਟ आप सम देख रहे हैं जिहदे विच साडा फंक्शन की है गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पहला तो आप थोड़ा देखिए कि फंक्शन है की है ठीक है शायद तुहानूं याद ना होवे तो ये बच्चे फंक्शन जिहड़ा आ वो साडे कोल दी प्रॉपर्टीज़ की होंदियां ने ग्रेटेस्ट इज द फंक्शन बच्चे की करदा कि इहदे विच कोई भी आपां वैल्यू पुट करिए चाहे बच्चे वो की होए डेसीमल दे विच ठीक है नैगेटिव डेसीमल च होए चाहे बच्चे होए पॉजिटिव डेसीमल दे विच इन्हें बच्चे आंसर की देना है इंटीजर ही आंसर देना है जिवें देखो जे बच्चे मैं ये वैल्यू पुट करदा 1.5 ते 1.5 ये तो बच्चे लैस इंटीजर केड़ा हैगा साडा 1 इन्हें बच्चे आंसर की देना है 1 आंसर दूगा ठीक है। जिवें मान लो बच्चे पुट करना मैं 3.9 है ये तो बच्चे लैस इंटीजर केड़ा हैगा 3.9 साडे कोल 3 इन्हें आंसर की देना 3 मींस ਇਹਦੇ ਆਨਸਰ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਉਹ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਜੇ ਡੈਸੀਮਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜੇ ਬੱਚੇ ਆਨਸਰ 2 ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਨਸਰ 2 ਹੀ ਦੇ 2 ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਆ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬੱਚੇ ਕੀ ਆਊਗਾ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਹੀ ਆਊਗਾ ਮੀਨਸ ਇਹਨੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਆ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡੈਸੀਮਲ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜੇ ਬੱਚੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਆ जो साडे को डेसीमल तो पहला इंटीजर है वो साडा आंदा आंसर देखो 1.5 का आंसर क्या है 1 3.9 का बच्चे आंसर क्या होगा 3 मींस जे पॉजिटिव डेसीमल हैगा डेसीमल तो पहला जो इंटीजर है वो साडा की आएगा इत्थे आंसर। वैसे नॉर्मली की होंदा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे विच जे डेसीमल वैल्यू आ ते ओदा बच्चे आंसर जो डेसीमल वैल्यू आ ओ तों छोटा इंटीजर आउंदा 1.5 तो छोटा इंटीजर केड़ा हैगा साडे कोल 1 3.9 छोटा इंटीजर केड़ा साडे कोल हैगा 3 ਇਹਦਾ बच्चे नेगेटिव वैल्यू देखिए अपने इत्थे नेगेटिव वैल्यू देखते हैं मान लो -1.4 हुन -1.4 तो बच्चे छोटा इंटीजर केड़ा हैगा साडे कोल इत्थे -2 है क्योंकि -1 ते -1.4 तो वड्डा ना नेगेटिव वैल्यू जिहड़ी देखण च वड्डी लगदी है असल च की हुंदी है छोटी हुंदी है ठीक है ना इस बार सानू इत्थे ही पता ही है हुन -1.4 है बच्चे देखो इत्थे
ਇਹ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -2 ਆਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ -3.9 ਲਈਏ ਇਹ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟਾ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -4 ਆਏਗਾ। ठीक है जी, होप करना कि तुहानू ये चीज़ तो क्लीयर हो गई होगी कि ग्रेटेस्ट जो फंक्शन आप +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ग्राफिकली भी डिस्कस किया सी। ठीक है, थोड़ा दसा कि तुहानू ये वैल्यूज़ जड़ियाँ ने वो ग्रेटेस्ट जो फंक्शन जोड़ा है वो सानू दिंदा है। ठीक है, हम बच्चे अपने सम वाल मूव करते हैं। इतने देखो बच्चे साडे कोल फंक्शन की वैल्यू फिर गिवन है कि बच्चे देखो इतने फंक्शन की वैल्यू 1 उपर गिवन है कि बच्चे -1 इक्वेशन 1 बच्चे नोट कर रहे हैं। लिमिट आप फाइंड करनी है। स्टार्ट कर बच्चे लैफ्ट लिमिट तो लैफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 के बाद चेक करना 1 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 1 नेगेटिव फंक्शन है बच्चे दैट इज -1 अपॉन x -1। हम देखो जी इतने इनू आई थिंक सिंपलीफाई अगे कुछ नहीं कर सकते। फिर डायरैक्ट बच्चे वही 1 तो लैस वैल्यू तो बच्चे पुट कर देंगे पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस एच तो h बच्चे वैल्यू क्या है ग्रेटर दैन 0 तो h बच्चे किनू अप्रोच कर देगा 0 नू। हुण इत्थे बच्चे ध्यान देखो इस स्टैप नू बहुत इंपॉर्टेंट स्टैप है h अप्रोचेस टू 0 इत्थे बच्चे पुट किया 1 माइनस एच -1 अपॉन 1 माइनस एच -1। देखो बच्चे 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ h वैल्यू माइनस करते पे हैं। ਹੁਣ h वैल्यू बच्चे की है ਸਾਡੇ ਕੋਲ बहुत एक स्मॉलेस्ट वैल्यू बट है तो पॉजिटिव ना 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ कोई छोटी जी वैल्यू माइनस करो थोड़ा आंसर क्या होगा 0.999 समथिंग आंसर आ जाएगा। यही आंसर आएगा ना। तो साडा फंक्शन क्या है बच्चे इतने ग्रेटेस्ट ही फंक्शन तो ग्रेटेस्ट फंक्शन में बच्चे की होंगे कि जे 0.999 आऊगा तो आप देखा कि पॉजिटिव वाले केस आंसर की लिखते हैं डेसिमल तो पहला इंटीजर मीनस ये तो छोटा इंटीजर तो छोटा इंटीजर बच्चे की आऊगा साडे कोल इत्थे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ उन्हें आंसर की देना बच्चे जो साडे कोल नंबर आ रहा उहदे तो छोटा इंटीजर उन्हें आंसर देना। ठीक है, साडे कोल बच्चे आंसर इत्थे की आ जाऊगा 0 साडा की होएगा बच्चे आंसर। ठीक है, हुण देखो 1 माइनस एच है 1 माइनस एच दा बच्चे साडे कोल आंसर नेक्स्ट की आ जाऊगा इत्थे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस h इधर बच्चे आंसर आ जाएगा साडे कोल 0 आ जाएगा -1 अपॉन 1 ना बच्चे 1 कैंसिल नीचे बच्चे कला क्या आ गया साडे कोल -h आ गया। ठीक है बच्चे, ये स्टेप में बच्चे बहुत ध्यान ना करियो क्योंकि किसी हुण 1 दे विचों बच्चे मैं फिर रिपीट कर रहा कि h नू माइनस कर रहे हैं मतलब 1 चों कोई वैल्यू माइनस हो रही है तो 1 चों वैल्यू कोई माइनस हो रही है तो ये साडे कोल बच्चे जो बचेगा वो हुण 1 दी इक्वल वैल्यू नहीं बचेगी। वैल्यू की बचेगी 1 तो थोड़ी जी लैस तो इंटीजर की करेगा जे 1 तो थोड़ी लैस मीनस 0.99 समथिंग आ गई तो उन्हें बच्चे आंसर की दे देना इतने 0 आंसर दे देना। ठीक है, राइट लिमिट फाइंड करेंगे तो होर इसकी क्लैरिटी होगी। देखो बच्चे नेक्स्ट 0 माइनस 1 बच्चे आ गया -1 -1 अपॉन साडे बच्चे आ गए थे -h 1 है बच्चे 1 कैंसिल हो गया बच्चे होगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 ये बच्चे आ गया साडे कोल 1/h लिमिट h अप्रोचेस टू 0। हुण बच्चे मैं जे h नू 0 पुट करांगा तो मेरे को इत्थे की आ गया नॉट डिफाइंड क्योंकि डिनोमिनेटर विच h आ रहा है तो h नू मैं 0 पुट कर ही नहीं सकता जे h नू मैं 0 पुट करांगा मेरा बच्चे आंसर इत्थे की आएगा नॉट डिफाइन आएगा मीनस मेरी बच्चे जिहड़ी इत्थे लेफ्ट हैंड लिमिट आ वो एग्जिस्ट ही नहीं कीती। लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती पई फंक्शन की वैल्यू सानू 1 के उपर दी सी -1 बट आप लैफ्ट हैंड बच्चे फाइंड की वो साड़ी इतने एग्जिस्ट नहीं की। इट मीनस हम इतों क्लीयर है कि दोनों लिमिट तो फंक्शन की वैल्यू लैफ्ट लिमिट तो साड़ी इक्वल नहीं आ रही। इट मीनस साडा इतने फंक्शन जो है वो की होएगा बच्चे डिसकंटीन्यूअस होएगा। बट राइट हैंड लिमिट भी इतने फाइंड करके देखते हैं। राइट हैंड लिमिट देखो बच्चे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव x -1 देखो बच्चे इतने पुट करांगे हम अपन x नू 1 प्लस h h ग्रेटर दैन 0 h बच्चे अप्रोच करता था 0 नू ये साडे कोल क्या आ जाएगा हम लिमिट आ जाएगी बच्चे h अप्रोचेस टू 0 x जगह पे बच्चे आ जाएगा 1 प्लस h -1 अपॉन 1 प्लस h माइनस। देखो बच्चे हम
ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰੇਟੇਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੇ 0 ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਊਗੀ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ 1 + h ਆ ਰਿਹਾ। 1 + h ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਮਤਲਬ 1 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ। ਜੇ 1 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਵੈਲਿਊ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਐਵੇਂ ਹੋਏਗੀ 1.0001 ਸਮਥਿੰਗ, ठीक है ना। 1 कुछ ऐड किया तो वैल्यू 1 तो क्या आएगी ग्रेटर, तो 1 तो ग्रेटर वैल्यू आ तो 1.0 समथिंग ਇਹਦਾ ਬੱਚੇ ਆਨਸਰ ग्रेटर ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਜਾਊਗਾ ਸਾਨੂੰ 1 ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚੇ ਟੀਚਰ ਕੀ ਆਉ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 1 ਆ ਰਿਹਾ। ਦੈਨ ਇਹਦਾ ਬੱਚੇ ਆਨਸਰ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆਊਗਾ 1 ਮਾਈਨਸ ਇਹਦਾ ਬੱਚੇ ਆਨਸਰ 1 ਆ ਗਿਆ। 1 + h ਦਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ 1 1 - 1 अपॉन 1 ਨਾਲ 1 ਬੱਚੇ ਕੈਂਸਲ, नीचे क्या आ गया h लिमिट h अप्रोचेस 0 बचे 1 - 1 क्या आंसर आ गया 0 अपॉन h इज इक्वल टू क्या बचे 0। देखो साडी लेफ्ट लिमिट ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਦੇ ਉੱਪਰ -1 ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲੈਫਟ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਈ ਆ ਨਾਟ ਡਿਫਾਈਨ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਰਾਈਟ ਲਿਮਿਟ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ 0 ਆ ਰਹੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਬੱਚੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈਗਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਬੱਚੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਮ ਸੋਲਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕਿ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ।